اپنی پیمنٹ سارا سٹھیک باپ بڑے بھی اس کے نام اللہ کا شکر کرتے ہیں موقع دی ہے موقع میں حاضر ہیں اگر پریشن لگے بس اس وقت کرتے ہیں جو ہم باقی پڑھے پریش کریں آپ کو ضرور قبول ہو آپ کو پسند ہے ہماری بس آپ کو بالکل میں پہنچے نہیں دعا کرے آپ کو بالکل میں پہنچے پکلا پڑے ہمارے پاس برکت ہو باپ سب کھاتے ہو پورے پیمنٹ کھانا ہاتھوں میں دیتے ہیں باپ کسی طرح کے انٹرپشن سے دور رکھیے باپ ہم سب کھاتے ہو باپ جتنے لوگ جتنے بچے گیت ان کے کھاتے ہم دیتے ہیں باپ ان سب کے جن بچوں نے جب اپنا رول ادا کرنا سارے بچوں کو جو بھی شامل ہیں ان کے لیے آپ کو شکر ادا کرتے ہیں نہیں ہے ان کو دل سے لے کے آئیے گا باپ ان سب سارے بچوں کو ہاتھ ہے باپ بیٹے چھوٹا دسنے کے بول کیجیے تم سے ناصری کے نام ہے آمین آمین کا بصیر اب ہم سسٹر دیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور جو بھی انہوں نے ورس یا کوئی گیت ریڈی کیا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں سسٹر دیا بائبل ورس یہ میرا پریہ پتر ہے جسے میں پسند ہوں اس کی سنوں پریز دی لارڈ ہیلیلویا یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے میرا خدا بڑا ہے آتی ہے آندیاں تو کرو ان کا خیر مقدم آتی ہے آندیاں تو کرو ان کا خیر مقدم دور غم کو طوفان سے ہی تو لڑنے خدا نے تجھے چنا ہے یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے میرا خدا بڑا ہے اگنی میں تپ کے سونا ہے وہ اور بھی نکھرتا اگنی میں تپ کے سونا ہے اور بھی نکھرتا درگم کو پاک کر کے ہمالیہ کو ہی چڑھا ہے آئے گی رنگ محنت آنکھیں تمہاری کے دن ہوگا وشال تربل جو بیت جو پڑا ہے یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے میرا خدا بڑا ہے یسو جے تیرا پیار مینو ملیا میں دنیا چھوڑ کی لینا میں دنیا تو حور کی لینا کرینا دور نظران تو میں تینوں بس ایہو ہی کہنا میں تینوں بس ایہو ہی کہنا یسو جے تیرا پیار مینو ملیا میں دنیا تو حور کی لینا دس تیرا یسو تیرا بجن سنو دینے دادا تیری بانی کر اوپر چوندے نے دادا تیری بانی کر اوپر چوندے نے اے بانی دا پنڈال مینو ملیا میں دنیا تو حور کی لینا میں دنیا تو حور کی لینا یسو جی تیرا پیار مینو ملیا میں دنیا تو حور کی لینا میں دنیا تو حور کی لینا پاپا وچ فسے ہوئے سارے نے جہان نے چارے پاسے وچھے ہوئے جال نے شیطان دے چارے پاسے وچھے ہوئے جال نے شیطان دے اے لوہے تلوار مینو ملیا
मैं दुनिया तो भूल की लेना, मैं दुनिया तो भूल की लेना, यीशु जी तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो भूल की लेना, मैं दुनिया बनू बस एहो ही कहना, मैं तेनू बस एहो ही कहना। पाप प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। Praise the Lord, God bless you. अब हम ब्रदर दाऊद अदैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और जो उन्होंने गीत प्रिपेयर किया हमारे साथ शेयर करें। ब्रदर दाऊद डैनियल। अगर किसी और ने करना है तो कर लें, 5 मिनट के बाद ये करेंगे। ओके, फिर सिस्टर सरबजीत। हाँ जी सिस्टर जी, जेएमसी दी। हाँ जी, आ जाओ मन्नत। रूही बोलो जेएमसी दी। जेएमसी दी। मैं ऊंची ऊंची बोलना। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ, जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, शकर मशेक दे अबद ने गो नु बलदी अग विच पाया, बलदी अग विच आप खुदा बंद पुत्र बन के आया, बलदी अग विच आप खुदा बंद पुत्र बन के आया, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ, जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, भोला सतेशियास नु देखो बिच जेल दे पाया, हत्थां पैरां बिच बेड़ियां रब देख ना पाया, उन्हां दी बंदगी ने दित्ती है जेल हिला, उन्हां दी बंदगी ने दित्ती है जेल हिला, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। जेएमसी दी। हाँ जी सिस्टर जी, मैं हुणे इन्हां नूं माड़ा जिहा सिखाया सी 2 मिंटां दे विच विच। Hallelujah, praise the Lord. हाँ जी God bless you. Okay. हाँ जी होर भी बोल सकदे सिस्टर जी? जी हाँ जी, मैं कहा टाइम जे कोई नहीं आया तो और बोल लेंदे है ना जी, ठीक है। हाँ जी, 1 सेकंड प्लीज। Okay. चलो मन्नू बोलो, आ जाओ प्रभु जी मेरे, ठीक है रूही चलो
आजा प्रभु जी मेरे, मैं प्यासी तेरे प्यार दी। आजा प्रभु जी मेरे, मैं प्यासी तेरे प्यार दी। सुन ले सब दुख मेरे, मैं प्यासी तेरे प्यार दी। तेरे राते फुल बरसौंदी आमा, आ जाओ प्रभु जी मेरे। मैं सुखा मंगदी आमा, आ जाओ प्रभु जी मेरे। मैं तेनू पुकारी जामा, आ जाओ प्रभु जी मेरे। दिल दुखां दा दरिया सी, तुसी सुखां दे विच बदल दिता। दुनिया खड़ी उड़ीके तेनू, आ जाओ प्रभु जी मेरे। मैं सुखा सुख दी आवा, आ जाओ प्रभु जी मेरे। तेरे रामा नू देख दी आवा, कद आउणा प्रभु जी मेरे। एक आस है प्रभु जी तेरी, आके असीस दे जावो। तहानू दुनिया तरसदी बैठी, एक बारी दर्शन दे जावो। इस दुनिया दे काला दौर जो आया, इस दा नाश तुसी कर देवो। सब आस किनारे बैठे, इन्हां नू ना ठुकरायो जी। सब दीदार तेरे लई बैठे, प्रभु जी जल्दी आयो जी। आ जाओ प्रभु जी मेरे, मैं प्यासी तेरे प्यार दी। आ जाओ प्रभु जी मेरे, मैं प्यासी तेरे प्यार दी। जैन सीरी सिस्टर। Praise the Lord, God bless you. अब हम ब्रदर दाऊद डैम और दानिश से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और आगे गीत गाएं। ब्रदर दाऊद डैम डैनियल। Praise the Lord. इमानुएल, खुदा हमारे साथ। तू जो था है, तू जो आने वाला है। इमानुएल, खुदा हमारे साथ। पैदा हुआ वो मेरे लिए, तक भी छोड़ा मेरे लिए। दुख भी उठाया मेरे लिए, सूली उठाई मेरे लिए। इमानुएल, खुदा हमारे साथ। अदालत से हमको बचाने आया वो जीना सिखाने। दी कुर्बानी अज़लियो अब्दी, बाप से हमको मिलाने। इमानुएल, खुदा हमारे साथ। मुसीबत परेशानी में भी रहता तू हर पल मेरे साथ। उड़ाता मुझे तू परों में, कुव्वत तेरी है मेरे साथ। इमानुएल, खुदा हमारे साथ। बेदिल ना हो, हिम्मत करो, यीशु को तक
बढ़ते रहो। काम करो कलाम करो, काम करो कलाम करो, यीशु में बढ़ते रहो। बेदिल ना हो हिम्मत करो, यीशु को तकते रहो। दुख भी सहे तो ऐसे सहे जैसे यीशु ने सहे, जैसे कि वो फाते रहा, जैसे कि वो फाते रहा, जोर में उसके बढ़ो। बेदिल ना हो मत करो, यीशु को तकते रहो। कमजोरों को तवाना करो, गम में सहारा बनो। मुर्दों को भी जलाता है जो, मुर्दों को भी जलाता है जो, वैसे ही काम करो। बेदिल ना हो मत करो, यीशु को तकते रहो। अर्ज़ो समा का खालिक है जो, दिल में उसी को रखो। अर्ज़ो समा का खालिक है जो, दिल में उसी को रखो। आने को है वो बादशाह, आने को है वो बादशाह, खुद को तैयार रखो। बेदिल ना हो मत करो, यीशु को तकते रहो। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अब हम सारा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और आगे जो स्टोरी है वो रीड करे। प्रेज द लॉर्ड। आज की हमारी स्टोरी पैदाइश की किताब के 3 बाब में से ली गई है। पहली नाफरमानी के बारे में कि इंसान ने पहली नाफरमानी कैसे की, खुदा ने उसको क्या क्या सजा दी। ये बयान पहले आदमी आदम और की बीवी हवा के बारे में है। ये उस सवाल का जवाब है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर खुदा ने सब चीजें अच्छी बनाई तो दुनिया में बुराई कैसे पैदा हुई। खुदा चाहता था कि आदम और हवा और हम सब खुश रहें। सच्ची खुशी उनके लिए है जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं। खुदा के बनाए हुए जानदारों में सांप सबसे चालाक था। सांप ने औरत से पूछा, क्या वाकई ही खुदा ने कहा है कि बाग की किसी दरख्त का फल ना खाना? औरत ने जवाब दिया, खुदा ने कहा है कि हम हर दरख्त का फल खा सकते हैं सिवाय उस दरख्त के जो बाग के दरमियान में है, और खुदा ने यह भी कहा है कि अगर हम उस दरख्त का फल खाएंगे या उसे सिर्फ छुएंगे तो हम मर जाएंगे। सांप ने जवाब दिया, ये सच नहीं है, तुम मरोगे नहीं। खुदा ने ऐसा इसलिए कहा है कि वो जानता है जब तुम उसे खाओगे तो तुम खुदा की तरह हो जाओगे, तुम नेकी और बदी की पहचान कर लोगे। फिर औरत ने दरख्त को देखा तो मालूम हुआ कि ये बहुत खूबसूरत है और इसका फल पका हुआ है। उसने सोचा कि अक्लमंद बन जाना तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए उसने फल तोड़ा और उसका कुछ हिस्सा खा लिया। फिर उसने आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। यूं ही उन्होंने फल खाया तो उनकी अकल रोशन हो गई और उन्हें मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते लिए और उनको सीक कर अपने जिस्म लिया। शाम के चलने फिरने की आवाज सुनी, वो फौरन दरख्तों के पीछे छुप गए। लेकिन खुदा ने आदम को आवाज दी और पूछा कि तू कहाँ की? सुनी तो मर गया क्योंकि मैं था। खुदा ने उससे पूछा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्योंकि क्या क्या तो फल खा लिया जिसके खाने से मैंने तुझे मना किया था? आदम ने जवाब दिया, ये औरत की गलती, फल खिलाया। फिर खुदा ने औरत से पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? औरत ने जवाब दिया, सांप ने मुझे बहकाया और मैंने वो फल खा लिया।
तब खुदावन खुदा ने सांप से कहा, तुझे इसकी सजा मिलेगी, सब जानवरों में तुझ सबसे लानती होगा, अब तू पेट के बल रेंगेगा, तुझे मिट्टी खानी होगी जब तक तू जिंदा है। मैं तेरे और औरत के दरमियान नफरत पैदा करूंगा, इस उसके और तेरे बच्चे भी एक दूसरे के दुश्मन होंगे, उसका बच्चा तेरा सर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदा ने आदम और हवा को भी सजा दी और वो दुख उठाएं। खुदावन खुदा ने आदम और हवा के लिए जानवरों की खाल से कपड़े बनाए और उन्हें पहनाए। फिर खुदा ने सोचा कि अब ये मर्द और औरत मेरी तरह बन गए हैं, अब इन्हें मालूम है कि नेकी क्या है और बदी क्या है। इन्हें जिंदगी का दरख्त फल नहीं इन्हें जिंदगी के दरख्त का फल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने जिंदगी के दरख्त का फल खा लिया तो ये भी मरेंगे नहीं। इसलिए खुदावन ने आदम और हवा को बागे अदन में से निकाल दिया। उस वक्त के बाद इंसानों को खुराक हासिल करने के लिए खेतों में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आमीन। आज की हमारी स्टोरी खत्म हुई। जी ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम सिस्टर शहीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आएं और आगे प्रेयर मीटिंग को लीड करें। सिस्टर शहीन। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सारा समर और दाऊद, दाइम, डैनियल और दिया। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आप सबको बड़े अपनी कुदरत के लिए, अपने जलाल के लिए कुदरत के साथ इस्तेमाल करता रहे और खुदावंद का दहना कुदरत वाला हाथ आपके ऊपर बड़ा रहे। खुदा उनकी हिकमत और दानिश और फहम, अक्ल, समझ आपकी जिंदगी में काम करे और आप खुदा उनके जोर से, पाकरू की रहनुमाई से अपनी जिंदगियां गुजारें और दुश्मन की फौजों पे आप हमेशा फतह पे फतह हासिल करते रहें। जहां जहां खुदाउन के नाम से आपका कदम जहां पे भी पड़े वो जगह आपको मिल जाए। खुदावंद आपको बुलंदियों पे लेके जाए, सरफराज करे, कामयाब करे, स्टडी में आप कामयाब हों और खुदावंद जिस तरह खुदावंद ने यशवा से वादा किया था वो वादा आपकी जिंदगी में पूरा होके मैं उम्र भर तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर आप खुदावंद के साथ खुदावंद के हुक्मों पे चलते रहेंगे तो खुदावंद कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा और खुदावंद अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करता है। गॉड ब्लेस यू। हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावंद यहाँ पे तू मौजूद है। खुदावंद तूने बच्चों की सारी दुआओं को, सारी अर्जों को, मिन्नतों को, खुदावंद शुक्रगुजारियों को सुना खुदावंद। और खुदावंद हमारा ईमान है कि तूने अपने बच्चों की झोलियों को भर दिया है। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तेरा तख्त यहाँ पे लगा हुआ है। खुदावंद तू हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद इस रोटी के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जो कि तेरा बदन है। खुदावंद जब हम इसको लें तो हमारे अंदर से, हमारे घरों से खुदावंद यीशु वो तारीकी के काम, वो सारे काम जो खुदावंद तुझे पसंद नहीं हमारी जिंदगियों से जाते रहें। जब हम इस पानी को लें जो कि खुदावंद यीशु मसीह अब तेरे लहू में तब्दील हो गया, तो हमारे अंदर वो तेरी जिंदगी आ जाए, वो कसरत की जिंदगी खुदावंद खुदा, वो तेरा जोर आ जाए, वो मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत, ताकत आ जाए हमारे अंदर। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह तूने कब्र पे, सलीब पे फतह पाई, खुदावंद इसी तौर से हम भी खुदावंद जब इसको अपनी जिंदगियों में लेते हैं तो खुदावंद वो सारे काम जो हमें मौत की तरफ लेके जा रहे हैं, वो सारे तारीकी के काम हमारी जिंदगियों से खत्म हो जाए। खुदावंद वो बीमारियां जो किसी लानतों की वजह से आई हैं खुदावंद, किसी हमारी कोई ऐसे काम की वजह से आई हैं खुदावंद यीशु, वो सारी बीमारियां खुदावंद यीशु के नाम से आज हम उनसे शिफा पाएं, बहाली आए, आजादी है हमारी जिंदगियों में। और खुदावंद हम तेरे लोग आज एक कदम और तुझ में बढ़े। आज खुदावंद एक
कदम और तेरी पाकीज़गी में चलने के काबिल बन जाएँ खुदा। तेरे मसा से, तेरे ज़ोर से हमारे सारे बंधन खुलते जाएँ, सारी डोरियाँ खुलती जाएँ, जो किसी भी तरीके से शैतान के साथ बंध गई हुई हैं, किसी भी वजह से खुदा किसी ने हमारे खिलाफ कुछ बोला है, लिखा है, पढ़ा है, कुछ चिल्ले चढ़ाए हैं, कोई जादू टोना किया है, कोई तवीज़ धागा किया है खुदा यीशु के नाम से, आज वो खुदा उनका असर हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म हो जाए और हम तेरे लोग खुदा तुझ में खुदा व्यस्त होते जाएँ खुदा और बहुत सा फल लेके आए हम अपनी ज़िंदगियों में खुदा वो पाकरू के फल, पाकरू की नेमतें हमारी ज़िंदगियों में काम करना शुरू हो जाए। यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हम ईमान से इस पानी को लें और इस रोटी को जो कि अब खुदा यीशु मसीह के लहू में और उसके बदन में तब्दील हो गई। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदा का शुक्र हो आज फिर से खुदा ने हमें इकट्ठा किया। हम कलाम के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। खुदा आज जो कुछ भी तू हमारे साथ बोले खुदा वो हमारी जिंदगियों में घर करे। खुदा आज एक नया दौर हमारी जिंदगियों में शुरू हो और हम तेरे लोग खुदा यीशु तेरी बातों को खुदा जाने और खुदा तेरे भेदों को, तेरे मकाशवात खुदा आज तू हमारे ऊपर खोलना ताकि खुदा यीशु हम तेरी मानिंद बनते जाएं। खुदा तेरी उस पाक दामन कमारी की मानिंद तैयार हों खुदा यीशु मसीह जिसको तू लेने आ रहा है। और जहाँ-जहाँ भी हम बैठे हैं दुश्मन की फौजों को जो इस कलाम को सुनने में, समझने में, इस पे अमल करने से हमें रोकती हैं, यीशु के नाम से उनको अपने घरों के अंदर से, अपनी जिंदगियों के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ। यीशु के नाम से हमारे आज रूहानी कान खुल जाएं, रूहानी आंखें खुल जाएं और हमारे दिल की जमीन जरखेज हो ताकि आज कलाम का बीज जब बोया जाए तो खुदा वो 100 गुना फल लेके आए। यीशु के नाम से हम इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। हमारे बच्चे जो हैं हमने देखा, हमने सुना कि वो खुदावंद में बढ़ रहे हैं, इसलिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं और ज़रूर हम जो माएँ हैं, बाप हैं, हम अपने बच्चों के लिए दुआ में ठहरे रहें क्योंकि ये जो खुदा के ममसूम हैं, खुदावंद के पाक बच्चे हैं जो क्योंकि कलाम में लिखा है कि रास्तबाज जोड़ों से पाक औलाद पैदा होती है। तो इसीलिए हमारे ये जो बच्चे हैं वो पाक हैं और खुदावंद इनको बचा के रखे और उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, घुटनों पे बल होना पड़ता है ना? तो ज़रूर हम माएँ जो हैं या बाप हैं, वो ज़रूर मेहनत करें, फिर हमें फल मिलेगा। हाँ जी, हम आज जो पहला चैप्टर है पैदाइश की किताब, जेनेसिस की किताब, उस पे थोड़ी-सी हम बात करेंगे। लाइक जैसे कह लें स्टोरी हमें सारा ने हमारे साथ शेयर की महज़ 2 वीक पहले, है ना? लेकिन हम थोड़ा-सा इसको फिर और जानेंगे और हमारे साथ रीडिंग में अगर अंजना या निदा आप रीड कर सकते हैं तो। जी, कोई अगर तैयार है तो पैदाइश का जो पहला चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे और उस पे बात करेंगे। जी, अंजना। हाँ जी बाजी, हाँ जी मैं हाँ जी मैं पढ़ती। फर्स्ट चैप्टर हाँ जी, कि खुदा ने ज़मीन और आसमान को कैसे बनाया ये हम थोड़ा सीखेंगे। ये बड़ों के लिए भी है और बच्चे तो सारा ने सुनाई है स्टोरी लेकिन ये समझे कि हम बड़ों के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ
ਰਾਤ ਆਖਿਆ ਜੋ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਿਸ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਆਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਸਾਗ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬਿਰਛ ਉਗਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਫਲ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਘਾਹ ਤੇ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਸਾਗ-ਪਾਤ ਉਹਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬਿਰਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਹੈ ਉਗਾਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤਾਂ ਹੋਣ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਰਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਨਿੱਕੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸਨੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਸਵੇਰਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਨਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਖ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਫਲੋ ਤੇ ਵਧੋ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ, ਪੰਛੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵਧਣ। ਸੋ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫਲੋ ਤੇ ਵਧੋ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਸਾਗ-ਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਫਲ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ, ਖਾਣ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਗ-ਪਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਰਬਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਹਾਂਜੀ, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू अंजना, नाम आपका बरकत दे। निदा पढ़ेंगे कि उर्दू में? पहले बाप से कहाँ तक पढ़ना है? एंड तक, तक। पूरा चैप्टर। खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान भी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा
की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई तो पहला दिन। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया और ऐसा हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा और शाम को हुई और सुबह हुई तो दूसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो के खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स से मुआफिक फैले हैं और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे आए उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखे, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज और इनकी जिन्स के मुआफिक उनमें है उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई तो तीसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि फलक पर नैरों के दिन को रात से अलग करें, और निशानों और जमानों और दिनों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो। यहाँ से और वो यहाँ से पढ़ना और वो फलक पर नूर के लिए हों कि जमीन पर रोशनी डाले, और ऐसा ही हुआ। तो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे और एक नैयर अजगर के रात पर हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया, और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि जमीन पर रोशनी डालें और दिन पर और रात पर हुक्म करें और उजाले को अंधेरे से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई तो चौथा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे और परिंदे जमीन के ऊपर फिजा में उड़े। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवर और हर किस्म के जानदार को जो पानी से बाकसरत पैदा हुए थे उनकी जिन्स के मुआफिक, और हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने इनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समंदरों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ गए। और शाम हुई और सुबह हुई तो पांचवा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों
اور ان کی جنس کے موافق چوپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور اس کے سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و موقوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا دیکھو میں تمام روئے زمین کے کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا، یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا بہت اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی تو چھٹا دن ہوا۔ آمین۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم نے اس چیپٹر میں دیکھا، اور جو دوسرا والا چیپٹر ہے اگر اس کی بھی پہلی 2 آیتیں پڑھیں تو اس میں جو 7واں دن ہے اس کا بھی ذکر ہے، جس میں خداوند نے آرام کیا تھا۔ جب سارا کچھ بنا لیا تو خداوند نے آرام کیا، تو اس لیے یہ 6 دنوں کا ذکر جو ہے پہلے چیپٹر میں ملتا ہے کہ خداوند نے کیا کیا بنایا۔ اور یہ میں کہوں گی کہ جو بڑے ہیں جن کو نہیں پتا ان کے لیے بھی، اور جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کو پتا یہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر کچھ تھوڑے بہت آپ لوگ جانتے ہیں تو جو سائنس ہے اور جو آپ کو بتایا ہے نا، ان کی فرق تھیوری ہے کہ جی کوئی دھماکہ ہوا تھا تو یہ زمین بن گئی تھی اور یہ پھول پودے یا ہے نا۔ تو اس لیے اگر ہمارے بچوں کو دیکھیں بائبل کا پتہ ہوگا، بائبل آپ کو پتا ہے کہ وہ کتاب ہے جو جتنے بھی دنیا میں کہہ لیں مذہب ہیں یا سب قومیں ہیں، یہ وہ سب سے کہہ لیں پرانی، اور جو کچھ بھی جیسے جیسے دنیا بنی، جیسے جیسے سب کچھ بنا، دیکھے کتنی ترتیب سے، کتنے واضح خداوند نے بتایا ہے۔ اور یہ موسیٰ کو خداوند خدا نے باپ نے کہہ لیں خود لکھوایا تھا، یہ کسی انسان کی کوئی وہ سوچ کے یا اس نے کچھ دیکھا تھا، کیونکہ موسیٰ تو اتنے بعد آیا تھا، لیکن خداوند خدا نے خداوند پاک روح نے کہہ لیں اس کو یہ سارا کچھ لکھوایا تھا۔ تو اس لیے اس میں سے کچھ بھی ہم کہیں گے کہ جھوٹ نہیں ہے، کچھ غلط نہیں ہے، کیونکہ خدا نے خود یہ کتاب جو ہے یا بائبل جو ہے بتایا ہے، لکھوایا ہے نا۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے نئی نسل ہے، بچے ہیں، یا یہ فلسفی آگے چڑھ کے پڑھیں یا سائنس میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں ان کو فرق ٹیچنگ جو ہے وہ ملے گی۔ لیکن اگر انہوں نے ان کی بنیادیں جو ہیں میں کہوں گی کہ چٹان پہ ہیں، پکی ہیں، اور بائبل کو یہ پڑھتے ہیں اور اس پہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے باپ نے، ہمارے خداوند باپ نے، خداوند یسوع مسیح، خداوند پاک روح کے ذریعے سے یہ بائبل جو ہے لکھی گئی ہے نا، تو اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ تو وہ کبھی بھی کوئی بھی ایسی کتاب پڑھ لیں گے، کوئی سٹوریاں جو سنتے ہیں بڑے آپ دوسرے مذہبوں میں کہہ لیں یا سائنس کے حساب سے آپ بڑی سٹوریاں اس کے بارے میں سنیں گے، لیکن اگر ہمارے بچے اس بائبل کو پڑھتے ہیں تو وہ ضرور کبھی اس سے ہلیں گے نہیں۔ جو مرضی ان کو کوئی اسکول میں یا کالجز میں یا آگے یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ سکھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر وہ ایمان پہ پکے رہیں گے کہ نہیں یہ خدا باپ نے اس کو بنایا ہے اور اس طرح بنایا ہے نا، تو وہ ضرور
उनकी मदद करेगा। तो इसलिए ज़रूर अगर छोटे बच्चे तो भूल जाएँगे, लेकिन बड़े जो बच्चे हैं थोड़े, वो इसको याद रखें कि खुदावंद ने देखें, खुदा ने हमें पहले ही आयत में मिलता है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, है ना? और उससे पहले कुछ भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे स्टोरियाँ हैं कि ज़मीन पे पहले ही कुछ दुनिया में इंसान थे या डायनासोर या इस तरह की चीज़ें हम आप लोग मूवीज़ में या देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, हमें बाइबल के नहीं बताते, है ना? तो वो सारी स्टोरियाँ हैं। तो अगर ऐसा सच होता तो कहीं न कहीं कोई इशारा जो है हमें बाइबल वो बताती कि अ, क्या कहते हैं, ज़मीन पे पहले भी कुछ था, है ना? लेकिन बाइबल से हमें ये पता चल रहा है कि खुदा की रूह जो है यानी पहले ज़मीन वीरान थी और सुनसान थी और गहराव था, यानी गहरियाँ कहिए ना खाइयाँ या जो भी है ना, तो उनके ऊपर क्या था, अंधेरा था और खुदावंद का रूह जो है पानी की सतह के ऊपर जुम्बिश जो है वो करता था। तो इसलिए पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था, सुनसान था, वीरान था और अ, पानी था, यानी आप कह लें कि समंदर था वो और गहरी हम कहें कि खाइयाँ या गहराव जो था वो था। इसलिए और कुछ भी नहीं था, ये बाइबल हमें बता रही है। तो ये ज़रूर हम याद रखें, जो बड़े जो नए आए हैं उनको भी नहीं पता है ना, तो जो हमारे बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को याद रखें कि ज़मीन पे पहले कुछ भी नहीं था। वो वीरान थी, सुनसान थी, अंधेरा था, अंधेरा ही अंधेरा था। तो इसलिए खुदावंद ने सबसे पहले क्या किया, जो रोशनी थी उसको बनाया, उसको पैदा किया और उसको तारीकी से या अंधेरे से उसको अलहदा किया। तो खुदावंद जो है, अगर हम बाइबल के हिसाब से देखें तो शुरू ही से ही हमें क्या पता चल रहा है कि खुदावंद ने क्या किया, अंधेरे को रोशनी से अलग कर लिया। अंधेरे के काम में कह लें, हम बोलते हैं ना, जो बड़े हैं उनको थोड़ा होगा कि हम बातें यानी या दुआ में या हम पढ़ते हैं कि तारीकी के काम। तो इसलिए तारीकी को खुदावंद ने पहले ही कह लें वर्स या दूसरी वर्स में हमें पता चलता है कि खुदावंद ने अलग कर दिया था। हम जो हैं दुनिया से कह ले, जिस तरह कहते हैं ना अलग किए हुए लोग हैं, हम रोशनी हैं। खुदावंद यीशु मसीह क्या है, नूर है, रोशनी है। तो तारीकी से इसको पहले ही खुदावंद ने जुदा कर दिया। इसलिए हम हमारा तारीकी के साथ या जो नेरा है या अंधेरा है पंजाबी में, है ना, उसका कोई मेल नहीं है रोशनी के साथ। इसलिए खुदावंद ने पहले दिन सबसे पहले मैं कहूँगी कि ये किया कि तारीकी को अंधेरे से अम, अ, रोशनी को अंधेरे से जुदा कर दिया। तो इस पहले दिन खुदावंद ने ये किया, तारीकी को रोशनी से अलग किया। तो इसलिए ये सेपरेशन जो कह लें या अलहदगी जो कह लें, वो शुरू से ही खुदावंद ने शुरू की है और ये अ, हमारी ज़िंदगियों में ये होती रहे मसलसल, जैसे कह लें कि हम तारीकी के कामों से अलहदा होते रहें और जो तारीकी के काम करते हैं या उससे भी अलग होते रहें, है ना? तो पहले दिन ही ये काम जो है वो शुरू हो गया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम खुदा यीशु मसीह में आ जाते हैं, तो पहले दिन से ही कह लें कि तारीकी के काम जो हैं वो हमारी ज़िंदगी से निकलते जाने चाहिए, अलहदा हो जाने चाहिए। या जैसे हम खुदा यीशु मसीह को जब कबूल करते हैं, तो हम क्या है, अंधेरे से निकल के रोशनी में आ जाते हैं, है ना? तो इसलिए पहले दिन क्या हुआ कि दिन और रात जो है वो खुदा ने बनाया, है ना? तारीकी को रोशनी से जुदा कर दिया पहले दिन। और दूसरे दिन खुदा ने क्या किया, पानी जो था ऊपर का पानी कह लें और नीचे का पानी जो है यानी समुंदर, जो भी सारा पानी जो था, नीचे के पानी को और ऊपर के पानी को और बीच में फ़ज़ा जो थी, उसको खुदा ने बनाया। और लिखा है कि सुबह हुई और शाम हुई, है ना? तो ये दूसरे दिन जो है खुदावंद ने फ़ज़ा को और पानियों को जो था
वो जुदा किया। तीसरे दिन खुदावंद ने जो घास है और पौधे जो थे, दरख्त जो थे, घास जो था, खुदावंद ने वो बनाया। और जो कह लें नीचे की जो बूटियां वगैरह है ना, जो कुछ भी था, तो खुदावंद ने तीसरे दिन जो था वो दरख्तों को और घास को और नीचे की जो जमीन है कह लें उसको खुदावंद ने बनाया तीसरे दिन, है ना। और चौथे दिन खुदावंद ने जो सूरज चांद सितारे जो थे खुदावंद ने वो बनाए। चौथे दिन जो है सूरज और चांद और सितारे जो है खुदावंद ने वो बनाए, है ना। और पांचवें दिन खुदावंद ने जो परिंदे थे, जो हवा में उड़ने वाले, फिजा में उड़ने वाले परिंदे जो थे वो बनाए। और मछलियां बनाई। तो इसलिए चौथे दिन खुदावंद ने ये बनाया, है ना। तो इसलिए पांचवें दिन जो है खुदावंद ने वो पांचवें दिन खुदावंद ने परिंदों को और जो समुंदर के अंदर जो जानदार हैं उनको बनाया, है ना। जो फिजा में हैं, जो पानियों के अंदर हैं, उनको बनाया, है ना। और खुदावंद ने उनको बरकत दी कि फलो फूलो। परिंदों को उनकी जिन्स के माफिक पैदा किया और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समुंदरों के पानी को भर दो और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाए। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पांचवा दिन हुआ। तो पांचवें दिन खुदावंद ने जो समुंदर के अंदर हैं और जो परिंदे हैं वो बनाए, है ना। और फिर खुदा ने छठे दिन जो था जंगली जो जानवर हैं उनको बनाया। और खुदावंद ने इंसान को बनाया। और खुदावंद ने जो इंसान है उसको लिखा है कि अपनी शबीह पे बनाया, यानी अपनी सूरत पे बनाया, अपनी शक्ल पे बनाया। खुदावंद ने इंसान को जब बनाया तो किसी जानवर को, किसी और परिंदों को या किसी को नहीं, खुदावंद ने इंसान को अपनी सूरत पे जो था वो पैदा किया, बनाया मतलब। और लिखा है साफ साफ कि नर और नारी, ये नहीं है कि खुदावंद ने सिर्फ आदम को बनाया था, खुदावंद ने दोनों को बनाया, यानी आदम और हवा को, नर और नारी को। और क्योंकि ये भी एक गलत जैसे कह लें कि कुछ स्टडी या कुछ कहा जाता है ना कि पहले, लेकिन खुदावंद ने यहाँ पे हम देखते हैं कि नर और नारी को बनाया। और खुदावंद ने ये सारा कुछ जो कुछ बनाया था, खुदावंद ने कहा कि ये सब कुछ जो है अच्छा है। बल्कि खुदावंद ने जब इंसान को बनाया और खुदावंद ने कहा कि बहुत अच्छा है ना। तो खुदावंद ने इंसान के खाने का और जो परिंदे हैं या जंगली जानवर हैं या जो भी रेंगने वाले हैं सबके खाने का भी बताया कि इंसान क्या है, वो फल और सब्जियां खाएंगे। और जो जानवर हैं या रेंगने वाले हैं जो भी हैं वो क्या खाएंगे, वो बूटियां खाएंगे। वो उनके लिए कह लें घास या जो हरी बूटियां हैं वो खाने के लिए रखी थी। खुदावंद ने यानी शुरू में कह लें जब बागे अदम बनाया था वहां पे इंसान जो है वो गोश्त नहीं खाता था, यानी जानवरों को जैसे। और जानवर भी जो थे वो भी एक दूसरे को नहीं खाते थे। ये यहाँ पे हमें ये मिलता है ना कि वो क्या कहते हैं, हरी बूटियां, ये हलकती साइड में है ना कि वो क्या कहते थे, बूटियां, हरी बूटियां खाने के लिए थी। और खुदावंद ने जो इंसान था, लिखा है कि 28 उसमें, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीर को मामूर और मकूम कर और समुंदर की मछलियां और हवा के परिंदे और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं
इख्तियार रखो। ये नर और नारी को यानी आदम और हवा को खुदावन ने इख्तियार दिया था। मतलब वो एक जो कुछ भी ये खुदावन ने बनाया 6 दिनों में, खुदावन ने आदम और हवा को उसके ऊपर कुल इख्तियार दिया था। वो इसके अंडर थे। वो जो थे कह लें आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि जो आदम था उसने सारे जानवरों के, परिंदों के, उनके नाम जो थे आदम ने रखे थे। तो इसलिए खुदावन ने इंसान को जो था वो इनका जो पूरा इख्तियार था वो खुदा ने दिया था। तो इसलिए वो इख्तियार आगे चल के हम देखेंगे कि जब छीन गया था तो अब फिर खुदा ने हमें इख्तियार जो है इन सारी चीजों के ऊपर दिया है। तो यहाँ पे समझे कि खुदा का बंदा जो था, इंसान जो था, जो आदम और हवा थे, वो एक किस्म का बादशाह थे। सारे जो खुदा ने कायनात जो बनाई, जो जमीन और आसमान को बनाया, और नीचे जो सारे जानवर, परिंदे, घास फूस, सब कुछ जो कुछ बनाया खुदावन ने इनके आदम और हवा के इख्तियार में किया था। यानी वो इस पे कह लें जो कुछ वो चाहे वो कर सकते थे। तो इसलिए खुदावन ने उनको इख्तियार दिया था, और खुदावन ने 6 दिनों में ये सारे जो कायनात थी, जो इंसान को भी खुदावन ने बनाया। और खुदावन ने जो 7वां दिन था, जो आगे चैप्टर में है कि खुदावन ने 7वें दिन आराम किया। तो 6 दिन मसलसल जैसे हम कहेंगे खुदावन जो है वो काम करता रहा, और ये खुदावन ने जमीन और आसमान को बनाया। और जो कुछ भी इसके अंदर हम देखते हैं वो कोई धमाके से नहीं हुआ, किसी भी तरह से ये नहीं हुआ, ये खुद खुदावन ने बनाया है। खुदा बाप ने, और हम कह सकते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटा, और खुदा पाक रूह ये वहां पे थे। क्योंकि हम पहली ही आयत में देखते हैं कि खुदा का रूह पानियों के ऊपर क्या कर रहा था, जुम्बश करता था, है ना। तो इसलिए खुदावंद, और जो हमें पता है कि खुदाम यसु मसीह क्या है, वो कलाम है, यानी जो खुदा उनके मुंह से निकलता था वो एक किस्म का उसको चीजों को कहले बना रहा था। तो इसलिए ये कहीं पे भी आपको कोई इस तरह की स्टडी दे कि ये कोई धमाका हुआ था या कुछ इस तरह हुआ था, तो ये कायनात जो थी बन गई थी पूरी, ये जमीन, आसमान, हवा, फिजाएं, समंदर, सब कुछ, और फूल पौधे, सारा कुछ इस तरह बन गया था। तो हम उस पे यकीन ना करें, क्योंकि हमारी बाइबल के वो कह लें खिलाफ बात कर रहे हैं, खुदा के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, खुदा को एक किस्म का कह लें कि वो नीचा कर रहे हैं। ये जो भी स्टडी अगर आपको कहीं से भी मिले, कुछ भी आप किसी से सुनते हैं या कोई किताब ऐसी पढ़ते हैं, तो लेकिन आपको पता हो कि हमारी बाइबल में जो लिखा है वो सच है, वो हमारे खुदा ने खुद कह लें लिखा है या हमें बताया है, इसलिए वो झूठ नहीं है। तो इसलिए सब कुछ किसने बनाया? खुदावंद ने बनाया। और खुदावंद पाक रूह, खुदावंद यीशु मसीह वहां पे सब कुछ उनके खुदा बाप के साथ वो सब काम कर रहे हैं, है ना। तीनों जो हैं वो एक ही हैं, और तीनों काम जो है वो अलग-अलग से भी करते हैं। तस्लीस जो है यानी ट्रिनिटी जो है, यानी वो एक भी हैं लेकिन वो अलग-अलग से भी काम करते हैं, है ना। तो इसलिए ये खुदावंद बाप ने, खुदावंद पाक रूह, खुदावंद यीशु मसीह ने ये सब कुछ बनाया है। किसी भी तरह से हम इसको आपको कोई मिले तो ये झूठ है। और खुदावंद ने ये जो बनाया और उसके बाद आराम किया, तो इसलिए ये 6 दिन में ये बना जो कि हमें मिलता है, और 7वें दिन खुदावंद ने आराम किया। तो हम भी जैसे कि एक रूटीन होती है ना कि 6 दिन काम करते हैं और 1 दिन छुट्टी होती है 7वें दिन। तो इसलिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने सब कुछ जो था वो बड़ी खूबसूरती से बनाया, और खुदा ने खुद कहा कि ये बहुत अच्छा है। तो इसलिए जब भी हम
اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہوا فضا جو ہے جو دیکھتے ہیں پھول پودے، تو اس لیے خدا ان کا شکر کریں کہ سب کچھ کس کے لیے بنایا یا کس کے لیے ہے، یا میرے لیے اور آپ کے لیے ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے خداوند کی کاراگری ہے، خداوند باپ کی کاراگری ہے، خداوند یسوع مسیح کی، خداوند پاک روح کی. تو اس لیے ہم خوش ہوں اور اس کی شکر گزاری کریں ہر وقت جو ہے. اگر فضا نہ ہو تو ہم سانس نہیں لے سکتے، ہے نا. پانی نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں یعنی سورج، چاند، ستارے کس کے لیے ہیں؟ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہیں، ہے نا. تو یہ اگر نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو اس لیے ہم روز جیسے کہیں اٹھیں تو ہم خداوند کی شکر گزاری کریں. اور خداوند نے جو میرے لیے اور آپ کے لیے اچھا انتظام کیا ہے، خداوند کی ہر وقت ہر سانس میں شکر گزاری کریں، ہے نا. تو خداوند مجھے اور آپ کو جس کو خداوند نے بنایا اپنی شکل پہ، اپنی شبیہ پہ، یعنی اپنی صورت پہ جو باہری، لیکن جو ہمارے اندر جو خصوصیات ہیں وہ بھی خداوند نے اپنی مانند بنایا. لیکن آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ شیطان نے اس کو آ کے خراب کیا، ہے نا. لیکن خداوند نے اس کو جو ہمارے سیرت ہے، جو ہماری جیسے کہ بیہیویئر ہوتے ہیں یا جو بھی وہ بھی خداوند نے اپنے اوپر بنایا، لیکن ہم نے اس کو خراب کیا، ہے نا. تو یہ آگے چل کے ہم سیکھیں گے کہ ہم نے خود یہ کیا، اور لیکن خداوند نے مجھے اور آپ کو اپنی صورت پہ اور اپنی سیرت پہ یعنی بنایا ہے نا. تو خداوند آپ سب کو برکت دے اور خداوند اپنے میں اور زیادہ بڑھائے، اور خداوند اپنی گہری دل کی باتیں جو ہے میرے اور آپ کے ساتھ کرتا رہے، اور ہمارا رشتہ جو ہے وہ بنا رہے. جس طرح اس کے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ خداوند جو تھا وہ آدم اور حوا کے پاس آیا کرتا تھا، اور وہ ٹھنڈے وقت میں لکھا ہے کہ وہ باتیں کیا کرتا تھا آدم اور حوا کے ساتھ. لیکن پھر انسان نے جب گناہ کیا تو وہ باتیں کرنا خداوند نے چھوڑ دیا تھا، ہے نا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے خداوند کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ بن گیا ہے. تو خداوند جو ہے وہ آدم اور حوا کے پاس ٹھنڈے وقت میں آ کے باتیں کیا کرتا تھا. لیکن خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے پھر سے ہمارا باپ کے ساتھ ملاپ کر دیا ہے. پھر سے وہ ہم اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ہے نا. اور وہ ہمارے ساتھ اسی طرح بات چیت کرتا ہے جس طرح کے آدم اور حوا کے ساتھ کیا کرتا تھا، ہے نا. اگر ہم اس کے ساتھ باتیں کریں. ٹھیک ہے. تو گاڈ بلیس یو. بیک ٹو سمر. سمر ہے ہمارے ساتھ؟ چلیں سوریا آپ پریئر کریں گے؟ Hallelujah. Praise the Lord. زمین اور آسمان کے خالق و مالک یہ ہوا پاک خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. آسمان تو نے بنایا، زمین تو نے بنائی خداوند، تو نے ہر ایک چیز اب آپ کہی اور بن گئی. اب آپ ہم اقرار کرتے ہیں ہواؤں میں، فضاؤں میں اب آپ تیری مخلوقات کا خداوند، تیری تخلیق کا خداوند اب آپ اعلان کرتے ہیں خداوند کہ تو نے ہی سب کچھ بنایا. خداوند ہم تیرے ہیں، تو ہم